भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्रियसभद्रेषु नित्यं भगवत सेवाया। भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नस्तिके। सदाशिव्य श्रीमद्भगवती कथा एष श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समस्येत्। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखमृतदुः संयतां पिबतां भगवतं रसमाला मोहर्षिका भुवो भावुकः। ओम अग्निहोत्रस्य गणञ्जन शिलकते सत्यं पुरीयं सत्यं कृष्ण चरण देवं सीता कृष्णवद शरण विष्णुपद श्रीमती जय बदक्षामी श्री कृष्ण चैतन्य दैत गदाधर शिवश्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज में हम लोग सब मिलके जो चर्चा करने के लिए जा रहा है, तो हमको जो दिया गया है वो 12 से 15 चैप्टर। तो मैं मतलब ये मेरा लिए एक्चुअली क्या है, कठिन है थोड़ा से। कठिन का मतलब अगर हमारा तो क्या भगवतम जो बंगाली में है, तो क्योंकि मैं तैयारी किया तो हिंदी में। तो एक्चुअली क्या है, इसको जो अगर हिंदी में अगर पढ़ सकता था पढ़ के, क्योंकि इसका लिए काफी टाइम लगेगा। तो मैं जितना भी लेक्चर सुन के जितना सोचा समझा, मैं थोड़ा से तैयारी किया। अगर कुछ गलती हो गया मैं सबसे माफी मांग लेता है पहले ही है, क्योंकि एक एक लाइन इसमें जो है ये थोड़ा अलग अलग से है। ये 10 चैप्टर जो है थोड़ा अलग सा है, क्योंकि एक एक हिंदी में पढ़ के तो उसका ऊपर है कुछ कमेंट करना चाहिए था। तो मैं ऐसे जो भी है बस आप लोग बस मुझे माफ कर दिया अगर कोई गलती हो गया। हरे कृष्ण। तो मैं श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रुतोवाच सूतोवाच आत्मा राम च मुनाय आत्मरामचमुनयो निग्रन्थयोऽपि उरुक्रमे निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किं भक्तिम् कुर्वन्ति अहितो किं भक्ति इत्थं भूतगुणहरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। श्रुत उवाच आत्मा राम च मुनय निग्रन्थयोऽपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणहरिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। অনুবাদ তাৎপর্য বা হিজ জীবনী শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ কি জয়। Translation: Shuta Goswami said, all different varieties of Atrama Atma Ramas take pleasure in the Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses and transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated soul. तो यहाँ पे एक मिनट, तो अभी 12 अध्याय 12 का में एक मिनट। Great sages such as the four bachelor devotees Shanaka, Sanatana, Sananda, and Sanat Kumar were attracted by the fragrance of flowers and tulasi leaves,
anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. Similarly, Shukadeva Goswami was attracted by the transcendental pastimes of the Lord. Shukadeva Goswami was already situated in the liberated stage, yet he has attracted by the pastimes of the Lord. This proves that the quality of his pastimes has nothing to do with materials affinity. Similarly, the young cowherd themselves are attracted by the bodily future of the Lord, and Rukmini was attracted by the hearing about the glories of the Lord. Lord Krishna attracted even the mind of the goddess of fortune. He attracted in the special cases the minds of all young girls. They attracted the mind of the elderly ladies by parental affections. They attracted the minds of the males in the uh, humor of servitude and friendship. The word Hari conveys various meaning, but the chief import of the word is that he vanquishes everything inauspicious and takes away the mind of the devotees by awarding pure transcendental love. By remembering the Lord in acute distress, one can be free from all varieties of miseries and anxieties. Gradually, the Lord vanquishes all obstacles on the path of devotional service of the pure devotee, and the result of 9 devotional activities such as hearing and chanting becomes manifested by the personal future and transcendental attributes. The Lord attracts all psychological activities of a pure devotee. Such is the attractive power of Lord Krishna. The attraction is so powerful that a pure devotee never hanker for any one of the 4 principles of religion. These are the attractive feature of the transcendental attributes of the Lord, and adding to this the words api and cho, one can increase the imports unlimitedly. According to Sanskriti grammar, there are 7 synonyms for the word api. So by interpreting each and every word of this loka, one can see unlimited number of transcendental qualities of Lord Krishna that attract the mind of a pure devotees. Hare Krishna. Namo हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा सा हम लोग सब मिलके चर्चा करेंगे। शुरू में तो अपना ब्रज प्रिय माता जी, इसके बाद सूरज माधव प्रभु, काल उसने भी मतलब अपना सर्वदेव प्रभु भी बहुत डीपली बहुत समझाया। मतलब बहुत अच्छा से क्लास दिया था कल। तो मैं थोड़ा से प्रयास करूँ आप लोग का कृपा से, थोड़ा से कुछ मैं जो भी मतलब किया मैं बस कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसने हमको 12 से 15, तो मैं थोड़ा से 11 से भी कल सर्वदेव प्रभु बताया, मैं 11 पैरा से भी थोड़ा से, क्योंकि इसमें 12 के भी लिंक होता है, थोड़ा से मैं प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हरिभक्ति सदुदय, तो हरिभक्ति सदुदय जो इत्थभूत का शब्द जो है, तो इत्थभूत शब्द का जो आश्रय क्या है, पूर्ण आनंद है। तो निराकार ब्रह्मा जो अनुभूति से जो प्राप्त, मतलब जो भी प्राप्त होता है, तो उससे बहुत गुना दिव्य आनंद प्राप्त होता है। किसमें? भगवान का भक्ति में। तो यहाँ पे जो निराकार ब्रह्मा का बारे में बताए, निराकार ब्रह्मा का जो अनुभूति से दिव्य आनंद का तुलना गुष्पदा का साथ किया। गुष्पदा तो एक्चुअली इसमें जो बंगाली में भी, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जो गुष्पदा सा, मतलब गुष्पदा का मतलब मेरा ख्याल में जो बसरा का जब जमीन में पा रखता है, तो उसमें जो थोड़ा पानी जमा होता है,
तो उतना ही निराकार ब्रह्म का आनंद है। मतलब इतना छोटा से जो वास्तव जमीन में पा रखते जैसे खड्डा हो जाता है, तो निराकार ब्रह्म का जो आनंद है उतना ही होता है। तो निराकार ब्रह्म के कोई आनंद एक्चुअली के अंदर हम लोग देखेंगे, निराकार ब्रह्म का कोई आनंद नहीं होता है। तो आनंद है किसमें? आनंद है कृष्ण भक्ति में। भगवान का जो दर्शन रूपी आनंद है वो समुद्र का जैसे, अभी देखो कितना बड़ा, हाँ, निराकार ब्रह्म का कितना आनंद है और भगवान का आनंद कितना समुद्र से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे भगवान का जैसे गुणों का बारे में बताया गया, तो हमारा जो एक्चुअली लौकिक गुण है, हमारा जो देखा हुआ गुण है, वो भगवान का गुण के साथ तुलना नहीं कर सकता है। तो भगवान का जो एक्चुअली गुण है, तो भगवान का गुण क्या होता है? भगवान का गुण आध्यात्मिक गुण होता है। हाँ, भगवान का कभी जो हम लोग जैसे सत्य रजो तमो गुण में पड़ा हुआ है, भगवान के उससे ऊपर है। भगवान के कभी ये सत्य रजो गुण जो है वो भगवान को प्रभावित नहीं करता है, उससे भगवान प्रभावित नहीं होता है। भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं होता है। तो जो भगवान का क्या है? असंख्य आत्मात्मिक गुण होता है। तो ये जो गुण है, तो कोई किसी गुण से आकृष्ट है तो दूसरा कोई गुण से भी आकृष्ट होता है। भगवान के सारे गुण एक एक जन को एक एक गुण से, भगवान का गुण से आकृष्ट होता है। जैसे किसी को भगवान का वात्सल्य गुण जो होता है, किसी को वात्सल्य गुण से कोई आकृष्ट हो जाए। तो जैसे अभी यहाँ पे इनका जो ब्रह्मा का जो 4 पुत्र है, सनक, सनातन, सनंद एवं सनत कुमार, तो ये जो 4 ब्रह्मचारी भक्त है, तो भगवान का जो चरण कमल में जो अर्पित फूल तुलसी और चंदन का स्वरूप में आकृष्ट हुआ था। जब वो वैकुंठ में गया, ये 4 कुमार जय विजय उनका दर्जा में रोक दिया था, तो नहीं जा सकते बोल के। तो उसने जय विजय कह रहा भगवान अभी विश्राम कर रहा है, आप लोग नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया? जय विजय को शाप दे दिया और भगवान सुना, भगवान वहां पे तुरंत उपस्थित हो गया और 4 कुमार भगवान को प्रणाम किया। जैसे भगवान आया द्वार में, जब भगवान आया तो 4 कुमार भगवान को मतलब प्रणाम किया और भगवान का चरण में जो मतलब जैसे प्रणाम किया, भगवान का चरण में जो चंदन मिश्रित तो तुलसी था उसका सुगंध लिया और जैसे सुगंध लिया उसमें नाक में प्रवेश किया और जैसे उनका नाक में प्रवेश किया तो ऐसे 4 कुमार क्या हो गया? भगवान से आकृष्ट हो गया। तो इस तरह अभी देखेंगे हम लोग, जैसे सुखदेव गोस्वामी भी भगवान का लीला श्रवण का माध्यम से आकृष्ट हुआ था। तो मैं कल जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें मतलब सुखदेव गोस्वामी को जब उनको लीला सुनाया गया तो लीला उसमें क्या था? आहु बकियम सनकल कुटुम जिगंसाय पाय तथा प्रिय सद्धि धत्री मुचितम ततूनम कंबा दयालु शरणम ब्रजमा। तो ये जो है, ये जो मतलब ये भगवान का एक महिमा है, ये गाना है। ये किसको? सुखदेव गोस्वामी को सुनाया गया था ये लीला। तो यहाँ पे और एक हम लोग देखता है जो भगवान का जो मतलब भगवान कितना कृपालु है। तो इसमें एक्चुअली मैं कह रहा था ना, मतलब अगर इसमें जो तात्पर्य में अगर हमने मतलब इसके काफी टाइम लगेंगे, तो मतलब एक एक मतलब लाइन को बंगाली में हिंदी में बोल के अगर बोलता था, तो मेरा ख्याल में आप लोग को मतलब सुनने में भी थोड़ा मजा आता था। तो जो भी है, तो भगवान मतलब यहाँ पे भगवान जो कितने कृपालु है उसके बारे में भी बताया गया। तो भगवान देखो इतना कृपालु है, जो पुतना जो है, पुतना तो भगवान को दूध पिला के मारने के लिए आया था, लेकिन भगवान है पुतना का भी क्या गोलोक धाम में जायगा दे दिया था, क्योंकि उनका गुण से आकृष्ट हुआ था भगवान। तो भगवान के गुण से सब आकृष्ट हो जाता है। तो ब्रजगोपी जो है, ब्रजगोपी भी श्री कृष्ण का शारीरिक रूप में आकृष्ट हुए थे। अभी जैसे रुक्मिणी देवी भगवान का महिमा श्रवण करके करके आकृष्ट हुई थी। जब रुक्मिणी देवी भगवान को चिट्ठी लिखी
तो भगवान के साथ उनको कोई मतलब बातचीत नहीं हुई है, बातचीत नहीं, भगवान के बारे में श्रवण करते करते आकृष्ट हुई, भगवान के बारे में सुनता था उनका बारे में है, तो उनका बारे में सुन के आकृष्ट हुई। तो भगवान का महिमा का बारे में सुन के उसने ज्यादा आकृष्ट हुए थे, इसलिए भगवान को उसने रुक्मिणी देवी भगवान को चिट्ठी लिखी, भगवान आप आइए, नहीं तो मेरे शरीर को मैं त्याग देंगे है। अब देखो रुक्मिणी देवी कैसे भगवान का पर इतना मतलब भगवान का बारे में सुन के, भगवान का महिमा भगवान का लीला सुन के रुक्मिणी देवी आकृष्ट हुए थे। तो श्री कृष्ण है क्या है, जैसे भाग्य लक्ष्मी है उनको भी आकृष्ट किए थे। श्री कृष्ण कैसे उनको आकृष्ट, उनका वंशी गीत में भाग्य का लक्ष्मी देवी को उनका मन हरण किया था, मतलब उनका वंशी गीत में है, जो हमारा जो भाग्य लक्ष्मी है उनका मन का हरण किया था, मतलब चोरी किया था। तो भगवान वयस्क महिला जो थी है ना, उनको भी आकृष्ट किया था है। तो कैसे आकृष्ट किया था, उनको मातृ स्नेह रूप में आकृष्ट किया है। भगवान मातृ स्नेह रूप में भगवान वयस्क महिला को आकृष्ट करता था। जैसे जसोदा मैया है, उनको अपना क्या है बच्चा से भी प्यारा कृष्ण लगता था जशोदा मैया को है, तो प्रेम कृष्ण से करते थे है, प्रेम कृष्ण से करते थे उसमें। तो और यहाँ पे जैसे भगवान पुरुष जो है, पुरुष को भी आकृष्ट करता था, कैसे आकृष्ट करता था है, तो शौका भाव में आकृष्ट करता था है। जो पुरुष लोग हमेशा जैसे उससे सोचता था जो कृष्ण मेरा शौका है, तो इसमें भगवान आकृष्ट उनको करता था। और जैसे कोई आता है तो उसमें बोलता था जो कृष्ण मेरा शौका है। और यहाँ पे जो बताया गया हरि शब्द के बारे में बताया गया, तो हरि शब्द का अनेक अर्थ होता है, लेकिन क्या है जो इसका जो मुख्य अर्थ है, भगवान सारे अशुभ वस्तु को नष्ट करता है और भक्त का मन को शुद्ध प्रेम प्रदान करके हर लेता है। हरि का मतलब भगवान हमारा सारे पाप हर लेता है, सारे दुख हर लेता है और शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करता है। अभी देखो कोई अगर कष्ट में है, तो जो कष्ट में रहता है उसको भी अगर भगवान को अगर कोई जैसे कोई कष्ट में हमेशा कष्ट में रहता है, अगर वो अंतर से भगवान को स्मरण करता है, तो सारे दुख चिंता है से वो मतलब भगवान उनको चिंता और जो कष्ट है ना वो हर लेता है। इसका नाम है हरि। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त का सारे भक्ति मार्ग में जब अवरुद्ध आता है तो भगवान का जब हम लोग भगवान का श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति का प्रेम प्रकट होने लगता है, हमारा भक्ति मार्ग में जो भी बाधा होता है भगवान उसको भी दूर कर देता है। तो यहाँ पे जब हम लोग कृष्ण का बारे में श्रवण करता है, उनका सुंदर का बारे में, उनका लीला का बारे में, उनका धाम का बारे में, उनका जो हम लोग जब आकृष्ट हो जाता है उनका सब गुणों से जब हम लोग आकृष्ट है, ऐसे कृष्ण का शक्ति में इतना आकर्षण होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भगवान कृष्ण का एक एग्जाम्पल दिया है। कृष्ण जब मोहिनी रूप धारण किया था तो देखिए भगवान शिव को मतलब भगवान जो शिव जो है वो भी आत्माराम है। तो भगवान जब मोहिनी रूप धारण किया था तो कृष्ण कितना एथलेटिक है, जो तो शिव जो को भी भगवान कृष्ण मोहिनी रूप में मतलब भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके मतलब उनको भी मोहित किया, किसको, शिव को भी मोहित कर दिया था। तो शिव जी भी भूल गया था जो उनके पास पार्वती बैठा हुआ है, तो पार्वती को छोड़ के शिव जी क्या किया, मतलब मोहिनी के पास मोहिनी के पीछे भागने लगा है। किस लिए भागने लगा, वो मोहिनी को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान इतने आकर्षक जो किसी को भी मोहित कर देता है, और ये आकर्षण इतना प्रबल होता है जो शुद्ध भक्त धर्म का जो चार सिद्धांत है
तो उसमें भी लाल मतलब जो मेरा कहने का है जो आकर्षण प्रबल होता है, मतलब आप ये जो भगवान का जो इतना आकर्षण इतना प्रबल होता है, जो शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त भी जो धर्म का 4 सिद्धांत है उसमें भी लालचा नहीं करता है, भगवान का आकर्षित है। जैसे अभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 से कोई लेना देनी नहीं होता है शुद्ध भक्त को। शुद्ध भक्त सिर्फ क्या चाहता है, शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान का सेवा में आनंद अनुभव करते हैं। और यही जो होता है भगवान का अप्राकृत आकर्षण है। तो इसके साथ ऑपी और चर शब्द मिलाने से श्लोक में अशिव वृद्धि होता है, तथा ये श्लोक का प्रत्येक शब्द को व्याख्या करने में हम लोग देखता है। जैसे अभी शुद्ध भक्त को आकर्षण करने में भगवान कृष्ण में असंख्य गुण पाया जाता है। मतलब इसमें जब हम लोग भगवान को मतलब शब्द को जब हम लोग व्याख्या करता है जो शब्द का, तो हम लोग देखते हैं जो शुद्ध भक्तों में भी उसमें भगवान का कितने मतलब असंख्य गुणों पाया जाता है, जो शुद्ध भक्तों को भी आकर्षण कर लेता है। तो सॉरी थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले गया, तो हमसे कोई अगर गलती हो गया बस, क्योंकि मैं बोला था शुरू में जो कि टोटल बंगाली में है, अगर मैं हिंदी में आहिस्ते आहिस्ते करके बोल के अगर बोलता था तो उसमें अच्छा सॉरी है। तो मैं यहाँ पे समाप्त करते, अगर किसी को कोई इसमें कमेंट करना है प्लीज आप लोग ऐड कर दिए कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद माधव प्रभु, शर्वदी प्रभु, शत्रुराज प्रभु, कुंजेश्वरी माता जी, ब्रजप्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। प्रभु बंगाली में क्या बोलते हैं, खूब बालो ना। देखो प्रभुपाद जी भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने प्रभु। थोड़ी देर में आपने बहुत कुछ हमें ज्ञान दे दिया। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण शत्रु प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम प्रभु जी। आपका क्लास बहुत अच्छा था, और अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग भी बंगाली में जैसे गोविंद प्रभु लास्ट टाइम हम लोग से बात किया था कि हम लोग बंगाली सीखना चाहिए, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का मदर टंग भी है। तो हम लोग प्रयास करेंगे प्रभु जी, तो आप अच्छे से हम लोग को और अच्छे से समझा सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझाया। चतुर्थ कुमार और फिर मोहिनी रूप के बारे में आपने बहुत सारा डिटेल में ये करके बताया। सो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रेम सखा प्रभु जी, बहुत बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु। और बहुत सारे अपने जैसे कि सत्यराज प्रभु ने कहा, दो आपने जो लीला वगैरह बताए, इट वाज वेरी नाइस प्रभु। जैसे कि हम ये 4 डेज से ये श्लोक के ऊपर हम लोग मंथन कर रहे हैं, तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी भी मतलब हमें सिखाते हैं किस तरह हम मतलब ये भागवतम को मंथन करना है, किस तरह हम एक जैसे कि बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने तो अभी सिर्फ एक ही मीनिंग निकाला है। तो बट चैतन्य महाप्रभु जी ने टोटल 64 मीनिंग एक ही वर्ड के ऊपर निकाला है।
तो इट वाज वेरी नाइस जिस तरह आपने क्लास दिया प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। मैं वही कह रहा था प्रभु, मेरे को थोड़ा कि एक्चुअली कि आप बात सही है, अगर आप लोग सबको अगर बंगाली आता था तो मैं थोड़ा सा कि टोटल जो है एक्चुअली टोटल तो मेरा जो है बंगाली में है, और हमारा क्या हिंदी क्लास मतलब हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं था, तो मैं जो भी है थोड़ा प्रयास करके बोलते हैं। हरे कृष्ण उमेश प्रभु। धन्यवाद प्रणाम ठाकुर, बोलिए। आपका आवाज सुनने बहुत दिन हो गया, सुना नहीं सुने। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु। तो अभी मैं सोचता हूँ कि अगर बांग्ला में पूरा क्लास दोगे तो हम लोग बांग्ला सीख जाएंगे। मतलब आपको आपके बोलने से हम लोग सीख जाएंगे, क्योंकि आपका जो बोलना है वो इतना मधुर है कि हम लोग उसको वो बांग्ला सुनते सुनते हम लोग सीख जाएंगे कि बांग्ला क्या है। और बांग्ला कोई डिफिकल्ट भाषा नहीं है। उसको अगर पढ़ते रहेंगे और उसके साथ में हम लोग इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर पढ़ते रहेंगे या इंग्लिश के अंदर जो है दूसरे लेक्चर सुनेंगे तो या हिंदी में सुनेंगे तो उसके साथ में को रिलेट कर सकते हैं। तो आप बांग्ला में क्लास लो प्रभु कभी, मतलब जब भी कोई छुट्टी आती है ना, 31st को नाइट को क्लास होगा या फर्स्ट को या क्लास रखो। पूरा जो है स्पेशल इस श्लोक के ऊपर, क्योंकि बांग्ला के अंदर बताया हुआ है, आपने बोलते बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ऑफकोर्स अच्छा ही लिखा होगा, तो आप हमको बताओ। और 31st के दिन आप 31st नाइट को या 1 जनवरी को सबको छुट्टी होगी, तो बैठ के हम लोग बांग्ला के अंदर ये श्लोक के ऊपर सुने आप क्या बांग्ला में बोलते हो। हरे कृष्णा। थैंक यू धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु, आपने सही कहा। एक्चुअली कि थोड़ा आपका ध्यान से सुनने का, अगर बंगाली में अगर हम क्या बोलने चाहते हैं और क्या बोल रहा है, जिसको अगर बराबर हिंदी आता है वो बराबर समझ जाएगा, क्योंकि बंगाली और हिंदी में बहुत से सारे जो वर्ड्स में होते हैं वो बहुत से सारे सिमिलरिटी है उसमें है। तो समान है। जैसे अभी हमारा वाइफ को भी कभी बोलता है तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, बोलता है हमको तो हिंदी है। मैं बोला तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, तुमको जरूर आ जाएगा है। क्योंकि हिंदी उतना बिल्कुल जैसे भी कोई नया नया अभी हम लोग देखता है ना, बंगाली लोग कोई बाहर गांव में जब जाता है अपने दुबई में, उन लोग समझ जाता है बंगाली लोग है क्या बोलने चाहता है हिंदी में। तो क्योंकि उनको तो हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो वो समझ जाता है वो क्या बोलने चाहता है आगे वाला। तो हालांकि उसने उल्टा जवाब देते, उल्टा मतलब बराबर हिंदी नहीं आता है उसको, मतलब बंगाली और हिंदी मिला के मिक्स करके जवाब देता है, तो समझ जाता है। क्योंकि यार हमारा यहाँ पे पहले हम लोग क्या है, टीवी का सीरियल जो होते हैं और हमेशा सब हिंदी का सीरियल देखता था। है पहले का जमाने की सास भी बहू थी वो वगैरह वगैरह बहुत से सारे फालतू जो चीज जब हिंदी में होता था तो वही देखता था, तो वो सुन के भी बहुत जन को हिंदी आ जाता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। वैसे भी जो बांग्ला मीठा भाषा है, और दही के अंदर अगर मीठा मिल जाएगा तो मिष्टी दही हो ही जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु अभी हरे क्लियर? कृष्णा तो प्रणाम। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे हाँ, कृष्णा। आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ आ रहा है प्रभु। हाँ प्रभु आ रहा हाँ है। नहीं, नहीं प्रभु वो वही बोलना था, बहुत अच्छा क्लास था, आपने बहुत सा पॉइंट एक्सप्लेन किया। इसमें खाली अभी मेरे को एक चीज़ याद आया। एक्चुअली जो फर्स्ट डे पे माता जी का क्लास हुआ था उसमें तो मैंने कमेंट किया था, तो उसको रेक्टिफाई करना था, तो उसमें बाद में वापस देखा मैंने। तो एक्चुअली कैसा था कि चैतन्य महाप्रभु ने ये मतलब जो है मतलब सर्वभौम भट्टाचार्य जो थे उन्होंने पहले उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। तो उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप मुझे ये वाला श्लोक समझो, आत्माराम वाला। तो उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उसको इसी श्लोक को 9 डिफरेंट अलग अलग तरीके से समझाया था। और फिर बोले कि आपको समझा? बोले नहीं, आप जो है मतलब श्लोका बहुत इजी है लेकिन आप अननेसेसरी इसको मतलब कवर कर रहे हो उसका रियल मीनिंग। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसको उन्होंने जो 9 मीनिंग बताया था तो उसको छोड़ के और 18 अलग मीनिंग से उसको समझाया था। तो मैंने 64 बोला था, तो इट वॉज नॉट 64, इट वॉज डिफरेंट 18 ट्रांसलेशन, मतलब अलग अलग तरीके से अलग 18 तरीके से समझा था। तो वो एक करेक्शन मेरे को बोलना था, तो आई थॉट आई विल जस्ट ऐड इट ओवर हियर।
और एक चीज़ बोलना था कि ये जो 4 कुमार थे, तो ये 4 कुमार अंदर आने के बाद उन्होंने तुलसी नहीं सूंघा। एक्चुअली उनको बाहर से ही, मतलब वो जब जाओ वहाँ से गुजर रहे थे 4 कुमार, तो उनको वो सुगंध आया, और वो सुगंध उनको फिर ढूंढने लग गया, अरे ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और फिर देखा कि अरे ये वैकुंठ का द्वार है, और वहाँ पे घुसने लगे वो, और तब जय विजय ने उनको रोका था। तो ये एक करेक्शन छोटा सा मुझे इसमें करना था। बाकी एवरीथिंग वाज वेरी फंटास्टिक, और ये बहुत बड़ा श्लोका है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है, और इसका प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके इसको 15 डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखा है। तो आई एम श्योर प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु के जो 18 डिफरेंट वेज से जो एक्सप्लेन किया था, उसमें से बहुत सारा जो था जो नॉलेज है वो हम लोग को इसमें इस 15 पैराग्राफ्स में दिया है, और सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से, सूरज माधव प्रभु ने, सर्वदेव प्रभु ने, वृष प्रिया माता जी ने, आपने इसको अच्छे से कवर किया। तो थैंक यू एवरीबॉडी। कल और या बस यही बोलना चाह रहा था। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम फॉर रेक्टिफाइंग मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपी प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप 18 बोल रहे हैं, वो एक्चुअली प्रभु जी ये जो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं 11 फैक्टर्स जो बताई है, और फिर बाद में आत्मा के बारे में 7 पॉइंट्स। सो 18 ये पॉइंट्स के ऊपर मीन्स उन्होंने ये किया था, एलोबरेट किया था प्रभु जी। हाँ, फर्स्ट एक्चुअली वो मीनिंग जो है, जैसे आत्मा का जो 7 मीनिंग है, मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब क्लियर मैंने कहीं पे सुना नहीं है कि इस वर्ड को लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया या क्या, बट फॉर दिस सेम श्लोका उन्होंने अलग 18 अलग, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो 9 उनका जो परपट दिया था, उसको हाथ में लगाते हैं और 18 अलग तरीके से इसी श्लोक को समझाया था। तो मतलब मैंने कहीं पे ऐसा देखा नहीं है, कहीं पे सुना नहीं आज तक कभी कि इस वर्ड का मीनिंग लेकर उन्हें समझाया था या क्या, बट इट वाज टोटली डिफरेंट, 18 डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम अ वैष्णव परसेप्शन। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का था वो दैट वाज इम्पर्सनलिस्ट कंसेप्शन से उन्हें समझाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। या उधर पृष्ठ हो। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन दिस वर्स इन 64 ways, each word explained, and how many ways each word can be explained, and from all the angles of vision he has proved that Krishna is all attractive. ये शिला प्रभुपाद ने जो है ना, अच्छा, ये परपट में ही है। जी ये बोल रहे हैं कि भाई अभी I just read out to you all different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kind of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of the Godhead. This means the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. प्रभुपाद ने बाद में बताया प्रभुपाद ने ये और उसके बाद में बताया कौन तो सा this पैराग्राफ shloka में is बता even सकते हैं more प्रभु जी? elaborately सॉरी। explained in Chaitanya Charitamrita. This is a summary. श्री चैतन्य महाप्रभु, मतलब ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु explained this verse in 64 ways, each word explained, and how many ways each word can be explained, and from all angles of vision he has proved that Krishna is all attractive. ये अपना श्रील प्रभुपाद की कमेंट्स हैं। ये कौन परपट में कौन से वाले पैराग्राफ में ये बता सकते परपट नहीं है, ये जो प्रभुपाद का लेक्चर है उसके अंदर ही है। हैं? ओके ओके ओके, हाँ, क्योंकि उसमें मुझे कहीं पे दिखा नहीं था, और एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन था मैंने एक Prabhupada, when he gave the lecture on this verse, he has said that this is a 64। summary. Chaitanya Mahaprabhu explained this verse in 64 ways. ओके ओके ओके, हाँ, नहीं एक्चुअली मैंने भी कहीं पे सुना था ये 64, इसके लिए मेरे दिमाग में था, तो आई सेड दैट, लेकिन फिर जब अपना क्लास ख़त्म हो गया
तो मैं वही ढूंढ रहा था एग्जैक्टली, जस्ट टू रिकन्फर्म व्हाट आई सेड वाज करेक्ट और नॉट। तो उसमें एक इस्कॉन डिजायर ट्री पे एक आर्टिकल था, तो उसमें 18 डिफरेंट वेज बोला था। तो आई थॉट आई विल जस्ट कंप्लीट, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं 64, तो श्योर इट विल बी 64 या डिफरेंट वेज। थैंक यू फॉर द करेक्शन। प्रद्युम्न प्रभु है ना, उनको ये बता रहे थे हाँ when हाँ Prabhu was reading the purport, so at that time Srila Prabhupada mentioned and he has the class he mentioned it. ठीक है, वो अब मुझे लिंक भेज सकते हैं तो उसका या श्योर मैं अभी थोड़ी देर में मैं भेज नोट ऑफ इट, क्योंकि मैंने अभी जो था मैं उसको करेक्ट करके 64 का 18 कर दिया। आई विल मेक इट अगेन and then टेकिंग रेफरेंस ऑफ दिस। I'll send you. थैंक यू प्रभु, क्योंकि ये बहुत साल पहले मैंने 64 सुना था। आई डोंट नो वो 64 फिगर जो था मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन माता जी ने भी वो दिन 18 बोला और मैंने भी वो आर्टिकल में चेक किया इस्कॉन डिजायर ट्री पे, तो इट सेड 18, तो आई थॉट इट इज़ 18, बट यस इट इज़ 64, सो दैट इज़ वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर उसके तो आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई नो लॉर्ड इज पूर्णा, तो एक श्लोक है पूर्णमिदम पूर्णात्म करके बात बताते हैं कि 64 वे से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को बताया था। सॉरी आपका आवाज़ जा रहा था, कैन यू रिपीट प्रभु? या मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद ने उसके बाद में जो ईशोपनिषद का श्लोक है ना, हाँ पूर्णमिदम हाँ पूर्णमुदच्यते, वो कोट करके बाद में बताया कि लॉर्ड इज कंप्लीट एंड देन ही आल्सो मेंशन दैट द 60 दिस चैतन्य महाप्रभु इन दिस वर्स इन 64 ways. थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर दिस करेक्शन। नहीं क्या है ना, हम लोग सुनते हैं कभी तो एक वो रेफरेंस नहीं था, क्योंकि बहुत साल पहले सुना था, लेकिन अभी आपने अभी Sure. डायरेक्ट इसका I'll share. रेफरेंस दे, तो दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। तभी सबके दिमाग में रजिस्टर हो गया कि 64 है, नॉट भगवान की 64 क्वालिटीज हैं, तो 64 वेज में उन्होंने बताया है, कैसे याद रख सकते हैं। यस 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 प्रभु। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दिस 64 क्वालिटीज। हरे कृष्णा। ओके, या कंटिन्यू प्रभु प्रेम सखा प्रभु, या किसी और का कोई कमेंट है तो प्लीज। ब्रज Yes, प्रिया माता जी Brother. कुछ बोलना। हरे कृष्ण। गोपी मनो प्रभु, मैंने जो 18 का बोला था ना, वो मैंने ऐसे बताया था कि सर्वब्रह्म मोम भट्टाचार्य जी को एक जैसे वो एक प्राउड जैसा होता है ना, कि दूर दूर से लोग मुझसे सीखने आते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु तो क्या ऐसे नीचे जमीन पे ही ये हो गए थे, और उन्होंने उनको सिखाने के लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने 9 पॉइंट्स कुछ बताए चैतन्य महाप्रभु जी को। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वो 9 पॉइंट्स को कुछ भी टच नहीं किया, और उनसे डबल 18 मतलब उनको बातें बताया था। तब सौरभ भट्टाचार्य ने बोला कि ये कोई मामूली मतलब इंसान नहीं है करके। तो वो ये अलग था, और जो आप 64 का बोल रहे हो ना, वो अलग है। तो मैंने वो जो इससे कनेक्ट किया था कि 18 पॉइंट्स उन्होंने 9 बताए, तो इन्होंने डबल बताया ऐसा करके। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें लेकिन अभी फिर ये फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि प्रभुपाद 64 बोल रहे हैं और ये 18, तो मतलब वो क्या है, वो हम लोग को फिर चेक करना पड़ेगा एक बार। 18 बेस क्या है और 64 बेस क्या है, वो एक थोड़ा सा हम लोगों को इसमें एक R&D करना पड़ेगा कि व्हाट वाज दैट 18 बेस एंड व्हाट इज द 64 बेस। तो सभी से वो रिक्वेस्ट चैतन्य करता हूँ। महाप्रभु जी ने सर्वभौम भट्टाचार्य जी को बताया था, और वो अ, हाँ माता जी। पीछे बहुत आवाज आ रही है। हाँ प्रभु ये जो प्रभुपाद जी का बता रहे 64, जो वो श्लोका के हिसाब से होगा, जो वो वर्ड का आत्माराम आत्माराम का। बट ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु गए थे ना सीखने, तब का ये मैंने बताया था, और मैंने 2-3 लेक्चर में सेम यही सुना था कि उन्होंने वो वर्ड्स को टच भी नहीं किया था, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला था चैतन्य महाप्रभु जी को। और चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, उन्होंने 9 बोला, तो उनसे डबल 18 वो करके उनको बताया था। हरे कृष्ण। नहीं, बट फिर कंफ्यूजन वही हो गया ना, वो फिर 64 वाला और 18 वाला, प्रभु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही 64 में बताया था ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आया क्या है वो। उद्धव प्रकाश जी कुछ बोल रहे थे। प्रभु मेरे साथ जो है ना, आपको
जैसे मैंने वो पर्पट पढ़ा, जैसे मैंने वो पढ़ा था, मैं उसका लिंक भेजता हूँ। एंड प्रोबेबली व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनको जो 9 बताए तो उन्होंने 18 बताए, तो इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने और इसके साथ बारे में बताया होगा जिसका विवरण नहीं आ रहा है। मतलब इट इज ओनली दैट ही हैज कम्युनिकेटेड विद सर्वभौम भट्टाचार्य, उनको 18 बताई, मगर उन्होंने बाद में 64 बताई होंगी जो शिला प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ मैं वही बोल रहा था कि हो सकता है, मतलब दिस इज आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब उनको 9 क्वालिटीज बताई, मैं 9 डिफरेंट वे से समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनको 18 बताई, मतलब सर्वभौम भट्टाचार्य को। मगर ऑन इन जनरल चैतन्य महाप्रभु एज पर शिला प्रभुपाद ही हैज एक्सप्लेन्ड इट इन 64 वेज। तो चैतन्य मतलब 18 बताया, उसके बाद और फिर बाकी जो 64 माइनस 18 था वो एक्सप्लेन किया। जी 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 जी। या तो एक बात तो श्योर है कि हम लोग सभी के दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कि इट इज 64 वेज। और जैसे हम लोगों ने देखा परपट में भी हर एक वर्ड का कम से कम 7 या 8 मीनिंग है, किसी का 11 मीनिंग है। तो वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना बना के चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसे एक्सप्लेन किया होगा। परपट के अंदर क्लियरली बताया अपी प्रभु वर्ड के देखते ऊपर। अभी सर्वदेव गिरधारी प्रभु क्या बोलते हैं, उनको शायद कुछ ये पॉइंट पे बोलना होगा। हाँ नहीं, एक मिनट उद्धव प्रभु जी को बोलने दो। प्रभु जी कुछ बोल रहे थे, फिर देन विल टेक सर्वदेव प्रभु। क्या प्रभु? हाँ प्रभु, मैं वही बोल रहा था कि जैसे अपी वर्ड है उसके ऊपर परपट के अंदर बताया कि दैट हैज सो मेनी मीनिंग्स। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, यू नो, जैसा मतलब हम लोग देखते हैं श्लोकास के अंदर कि संस्कृत के अंदर ईच वर्ड हैज मोर देन 8 to 10 मीनिंग्स। तो बेस्ड ऑन दैट हाउ यू present or how you play or how you frame the contents, उसके ऊपर you can do a variety of things and explain the people। जैसा वो श्लोक आता है ना, इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि भाई कौन सा एक इसका है कि पांडवों का एक आता है ना कि केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भया रुदंती कौरव सर्वे हा हा केशव केशव। ये एक श्लोक है जिसको लोग बोलते हैं कि ये संस्कृत के अंदर अभी केशवम पतितम, अभी केशव जो है गिर गए, केशवम पतितम दृष्टवा देखकर, कौन? पांडवा हर्ष निर्भया, पांडव लोग खुश हो गए। अभी केशव गिर जाएंगे तो पांडव कैसे हर्षित होंगे? रुदंती कौरव सर्वे, जितने भी कौरव हैं वो रो रहे हैं, हाँ हाँ केशव केशव, वो अपनी छाती पीट कर रो रहे हैं कि भाई वो केशव गिर गए, केशव गिर गए। अभी कौरव कैसे हंसेंगे, मतलब कौरव कैसे रोएंगे? कौरव तो मतलब कृष्ण के अगेंस्ट में है, केशव के अगेंस्ट में है। तो इसी श्लोक को अगर हम लोग बोलते हैं कि इसका जब भी सही संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या है? केशव, के यानी वाटर एंड शव यानी डेड बॉडी। केशव पतितम दृष्टवा, पानी में अगर के गिर गई डेड बॉडी, केशवम पतितम दृष्टवा पांडवा हर्ष निर्भया, तो मछलियों के झुंड को पांडव कहते हैं। पांडवा हर्ष निर्भया, पांडव सब हर्षित हो गए क्योंकि उनको खाना मिल गया। डेड बॉडी पानी में गिरी तो मछलियों को खाना मिल गया, तो वो हर्षित हो गई। पांडवा हर्ष निर्भया। रुदंती कौरव सर्वे, रो कौन रहे हैं? रुदंती, रो कौन रहे हैं? कौरव। कौरव कौन है? कौए, झुंड, कौओं के झुंड को भी कौरव कहते हैं। तो वो कौरव रो रहे हैं क्योंकि उनका खाना चला गया। तो दिस इज हाउ द संस्कृत लैंग्वेजेस। वंडरफुल वंडरफुल प्रभु, बहुत अच्छा श्लोक है प्रभु। इसका भी लिंक जरूर डाल दीजिएगा। दिस इज अ वेरी, एक्चुअली मतलब यही है कि सेम चीज है, एक ही चीज, लेकिन हाँ जैसा जाकिर नाइक वही है ना कि वो ऐसा बताता है कि भगवान कृष्ण तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ। इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट कि जो अभक्त है या जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, वो हमेशा इसका गलत ट्रांसलेशन देगा उसका। और जो सही
एक वैष्णव है या आचार्य है, वो बराबर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ही विल गिव दैट। सो थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा एक सेम श्लोक का अलग अलग ट्रांसलेशन। थैंक यू प्रभु। प्रभु यही रीजन है कि दैट संस्कृत until unless you do not have a qualified and जो संप्रदाय के गुरु नहीं है तो you will be going for a toss। इसके लिए हमको जैसे बताया गया यथारूप, जैसे प्रभुपाद ने कहा है वैसे ही सुनना है और वैसे ही समझना है, and we don't have to deviate। जो वो कहते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम कोट करो। करेक्ट यस प्रभु, या थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा ये था। बट आई एम हैप्पी कि वो दिन मैंने उसको 64 बोला और फिर उसको स्टडी किया, वहाँ पे मुझे 18 मिला और फिर देन दिस पॉइंट केम आउट एंड सारा इतना सारा पॉइंट्स निकला। सो दैट वाज अ वेरी नाइस टर्निंग पॉइंट कि हम लोग को इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला उसमें। So, अभी अगर आप बिलीव करोगे, जस्ट बिलीव इट, कि ये आज सुबह को मैंने जो है मंदिर से आया था और मैंने यही जो है ना पॉइंट इस श्लोक के ऊपर मैं पढ़ रहा था, मैटर पढ़ रहा था, उसी समय मेरे को ये 64 क्वालिटी दिमाग में बैठ गई। जैसे आपने 64 क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए बोला कि 18 क्वालिटीज है, 18 वेस है, तो मैंने बोला नहीं, ये मैं तो 64 पढ़ा था और इमीडिएटली मैंने जैसे ही है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। तो इट वाज नाइस दैट यू रेज्ड अ क्वेरी और उसके बाद में मैंने पढ़ा था, मतलब इट्स अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने बताया कि भाई हरे कृष्णा। यस यस प्रभु, कैसा भगवान हमारी मदद करते हैं कि हम लोग जब सिंसियरली कोई वजह से भक्ति विश्राम माधव महाराज बोलते हैं ना, अगर कोई बर्निंग क्वेश्चन है हमारे हार्ट में तो भगवान जरूर इसको क्लैरिफाई करते हैं। सो वही था कि डाउट था, एक 64 है 18 है, तो भगवान ने खुद ही बुलवाया कि बाबा 64 नहीं 18 है। आप भगवान ने आपको भी ऐसा बुद्धि दिया कि बराबर आज ही आपने बराबर उस बात से पढ़ा था एंड यू गिव दैट रेफरेंस। सो थैंक यू टू लॉर्ड एंड थैंक्स टू शिला प्रभुपाद एंड थैंक्स टू यू, बिग थैंक यू टू यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, इट्स अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा। थैंक यू। सरोदे प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो डॉक्टर केशवानंद है ना, जो प्रभु जी जो भक्ति विकास स्वामी महाराज के डिसाइपल है, उन्होंने प्रभु जी ऐसे ही बताया था कि जैसे कि आपने जैसे स्टार्ट किया था प्रभु कि पहले सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 बार इसको समझाया, देन चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको पहले 18 बार समझाया, देन सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि आप और भी इसको मतलब और भी अलग अलग वे से बताइए। तो देन ही स्टार्टेड उसको और ज्यादा वे में उन्होंने समझाया। तो ये 18 प्लस जो बाकी बचे हैं उसको टोटल मिलाएंगे तो 64 होता है, ऐसा उन्होंने बता रहे थे प्रभु। जय जय। ग्रेट थैंक यू प्रभु। मैं खाली ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये डॉक्टर केशवानंद प्रभु जो है ना, ये बहुत ही एकदम मतलब जैसे हमने देखा था मुनि, ही इज अ वेरी थॉटफुल पर्सन और उनका लेक्चर जो होता है बहुत जबरदस्त होता है, बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत बारकाई में होता है। सो ही इज अ वेरी मतलब एकदम प्रोफाउंड बोले फिलोसोफर जैसे हैं। यस यस, तो बहुत और जैसा हमारा ये भी जो डाउट था वो भी अभी सरोदे प्रभु के द्वारा क्लियर हो गया कि इट वाज 18 एंड देन फिर आगे फिर जब उन्होंने कहा वो आगे फिर उन्होंने कंटिन्यू किया और टोटल उसको फिर 64 कर दिया। थैंक यू सरोदे प्रभु। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एनालाइजिंग बोलते हैं ना, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग फिर डाउट में रह जाएंगे लाइफ टाइम की 18 था या 64 था पता नहीं। लेकिन जब हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो पक्का हम लोग को जो है फिर रेफरेंस मिल जाता है और फिर दिमाग में बैठ जाता है ये। सो थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। प्रभु फिलहाल तो आपने मुझे टेंशन दे दी। मैंने तो बोला भी बराबर था लेक्चर में 18 का, मैंने बोला बाप रे अभी क्या करूं, आपने मुझे टेंशन दे दिया। नहीं टेंशन की बात नहीं, मतलब इसे अपना जो क्योंकि मैंने ये प्रभु फिलोसफी है का ना वो क्लियर होना चाहिए अपना। मैंने ये केशवानंद प्रभु जी है ना जो भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल है उनका सुना था, दूसरे एक प्रभु जी का सुना था, 2-3 प्रभु जी का यही पॉइंट था कि जैसे 9 बातें सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने 18 में, तो मैंने बोला बाप रे अभी मैंने तो बराबर ही सुना था। तो नहीं अच्छा आपने हुआ सही सब सुना क्लियर था। हो।
लेकिन अभी सब जो है वो क्लियर हो गया ना कि इसमें हाँ और एक चीज मेरे को ये यहाँ पे बोलना था कि एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु जब उनको लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो वो देखते हैं ये हमेशा बस नाम संकीर्तन करते रहते, तो उनको बहुत डांटते हैं, बोले तुम इतने अच्छे सन्यासी हो। और जो केशव भारती जो उनके सन्यास गुरु थे, वो बोलते हैं ये जो है ये केशव भारती लाइन जो है ये थोड़ा सा नीचे वाला है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो मैं तुम्हें मेरा वाला जो सबसे ऊपर वाला जो संप्रदाय है उसमें भी तुम्हें इनिशिएट कर सकता हूँ। तो इस बात पे उनके सार्वभौम भट्टाचार्य जी के आई थिंक साले थे या कौन मेरे को याद नहीं आ रहा है, गोपीनाथ आचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते कुछ बोलो मत, शांत रहो, इनको बोलने दो। और फिर वो उनको बोलते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम सन्यासी हो और सन्यासी को वेदों में एक्सपर्ट होना चाहिए और ये सब। तो काफी दिन तक मतलब बोलते हैं तुम मेरे से ये सुनो, और काफी दिनों तक मतलब आई थिंक 7 डेज तक कंटिन्यूस जो है वो चैतन्य महाप्रभु को सुनाते हैं, पूरा वेद ये वो करके पूरा उसके ऊपर चर्चा होता है, उनको पूरा फिलोसफी देते हैं, बट इट इज इम्पर्सनल कंसेप्शन, जैसे वो उस लाइन के थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो फिर 7 दिन तक देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है, बोला तुम्हें कुछ समझ रहा है क्या? बोला मुझे सब अच्छे से समझ रहा है, उल्टा आप जो बोल रहे हो उसका जो मीनिंग है दैट इज कवरिंग दैट, तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग ए कंफ्यूजन। तो ये सुन के उनको झटका लग जाता है, ये क्या बोल रहे हैं करके। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये जो आत्माराम वाला जो है ये श्लोक पे आप मुझे बताओ। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी उसको 9 तरह से समझाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं दिस इज रॉन्ग, और फिर चैतन्य महाप्रभु उसको 18 तलक से समझाते हैं, और फिर जब वो मतलब उनको समझ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि मैं 9 तरीके से समझा है, तो ही इज एक्सप्लेनिंग इन 18 डिफरेंट वेज, और वो खुश हो जाते हैं बहुत, एकदम मतलब एकदम ही मतलब बोलते हैं ना एकदम उनके भक्त हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं नहीं और समझा, और तब फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मेरे को और एक चीज खाली ऐड करना था, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, ये गणोदेश दीपिका जो एक बुक है जिसमें मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सभी जो थे जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, नित्यानंद प्रभु बलराम थे, तो वैसे ही ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है ये कहते हैं कि ये गोपीनाथ सॉरी बृहस्पति जी के अवतार हैं ये भी। तो ही इज ए वेरी लर्नड पर्सन, और इस लीला में भी चैतन्य लीला में भी उन्होंने काफी मतलब जो था उनको नॉलेज था, उनके जैसा कोई पंडित नहीं था बड़ा। एंड उस टाइम पे था कि मिथिला वाज द हब फॉर द नॉलेज, तो सभी लोग जाके मिथिला में उसको स्टडी करते थे, और वहीं पे सब बुक्स थी और किसी को कॉपी करना अलाउड नहीं था वहां पे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वो सो एक्सपर्ट कि वो सारा सीख लेते हैं और वो श्रुतिधर होते हैं, सारा उनका माइंड में होता है, और फिर वापस वो नवद्वीप में आते हैं और वहां पे फिर वो अपने शिष्यों को बोल के फिर सारा मतलब जो राइटिंग शुरू करवाते हैं फिर वो, और इतना मतलब वो उसका जो है प्रसिद्धि फैल जाता है उस जगह का कि सभी लोग मतलब मिथिला छोड़ के फिर नवद्वीप में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। सो नवद्वीप दैट्स हाउ इट बिकेम मतलब जो है ना हब ऑफ बिग नॉलेज, मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान का। तो ही वाज वेरी वेरी लर्नड, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बट ही वाज इन क्या बोलते हैं निराकार संप्रदाय में थे, शंकराचार्य जी के फॉलोवर थे वो। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के इस लीला से जो है वो इस ये जो श्लोक है आज का हमारा, इससे वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन जाते हैं। तो जस्ट टू ऐड दैट, थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। सॉरी बहुत लेट हो रहा है, 9:26। जस्ट वन मोर पॉइंट प्रभु, जस्ट टू ऐड दैट कि अगर जो गंगा जी के ऊपर ये श्लोक था जो उन्होंने श्लोक बताए थे उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने कितने इसके अंदर से करेक्शन करके बताया जब केशव भारती को, तो वो भी एक वो एक वास्तव है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आप आरती शुरू कर दीजिए। मैं ऑफिस जा रहा है, मेरा टाइम काफी टाइम हो गया, मेरा वाइफ यस प्रभु, ओके ठीक है। सर्वदेव प्रभु या सत्यराज प्रभु, आप लोग किसी को सेवा दे दीजिए। नहीं, मेरा वाइफ गाली प्रभु। हरे कृष्णा। ओके माता जी को बोलिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षहार हिरण्यकशिपुर्वक्षहार किलटंक नखालये इतो नरसिंह परत नरसिंह इतो नरसिंह परत नरसिंह इतो नरसिंह परत नरसिंह यत जत जामि ततो नरसिंह वैरे नरसिंह हृदये नरसिंह वैरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं पपदे नरसिंहमदिं शरणं पपदे तब कर कमल बरे नाकम् अभूत सिंहाय दलिता हिरण्यकशिपो तनभिङ्गाय केशवद्रेता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। थैंक यू प्रभु।